ऑन नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर बोल रहे हैं, वन थिंग फॉर श्योर, ही इज मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। और यही बात हम कर रहे थे कि मेंटली बहुत स्ट्रांग लड़का है। He is mentally very, very strong. I mean, I've known him for quite a few years. So the way he went about his business today was amazing. I mean, he made sure he was also aware that we needed to see through a few balls as well when the situation got a little challenging for us. But yes, unbelievable 100. I mean, this 100 will be talked about and remembered for a very long time. No doubt about it. 100%. आगे और उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि उसको ये भी पता था कि जब हमें आराम से डिफेंड करना है ना, तो उसने डिफेंड भी किया। जब नई बॉल आई है, स्पेशली जब आप बोल रहे थे ना यार हमने आज स्लो खेला है, भाई वो नई बॉल आ गई थी, तब उसने बहुत देख के खेला, आराम से 10 ओवर के अंदर 13 रन थे, पहले मारा और बाद में मारा, उस टाइम पे देख के खेला, और बिल्कुल सही बोल रहा है। एंड दिस 100 विल बी remembered for a very long time. On Fight Back, I mean, one thing especially with Rohit bhai and Gauti bhai and all the support staff, they keep telling us to fight no matter what, and I did think that something that has been instilled in us in all of us कि fight करनी है बिल्कुल, no matter what the situation is, we'll just fight no matter what, and playing for India, you know, especially in a ground like MCG, a big occasion against Australia, Boxing Day test, will do no matter what it takes for us to be in a good position. Very happy for Nitish Kumar Reddy. I'm sure this will be remembered forever. आगे आ जाइए भाई। लेकिन इस लड़के के लिए मुझे यार इसकी इक्वली इंपॉर्टेंट नॉक है। इसका 50 ना होता, 150 बॉलें खेल गया यार वो, 100 ना होता, बॉलें भी खेल गया वो, 150 बॉलें खा गया, बॉलें खेली भाई उसने परसिवरेंस दिखाया, खड़े होके इसने भी तो बॉलर्स को थका के रख दिया। और नीतीश को भी कॉन्फिडेंस चाहिए था। यही काम वॉशिंगटन सुंदर ने पर्थ में भी किया था, जब विराट का 100 आया था, आपको याद होगा 100 बॉलें वहां पर भी वॉशी ने खेली थी अपनी बैटिंग एबिलिटी। वॉशी बहुत तगड़ी एबिलिटी, 50 से ऊपर की एवरेज चल रही है 53 वॉशी की भी टेस्ट में करियर में बैटिंग की बता रहा हूँ, 50 से ऊपर 50 से ऊपर 4-50 5-50 लगा चुका है। ये भी कमाल है कि वॉशिंगटन सुंदर की टेस्ट की बैटिंग एवरेज 50 से ऊपर है। आई थिंक प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी पुट अंडर challenges. I mean, no matter what, challenges can be different, can be in different ways, whereas just that you got to be ready to fight through those challenging situations. And I was just thinking about the things that I need to be doing so that I would see off some important spells. They came in quite hard. We just made sure we didn't lose any wickets, especially in those spells. So yes, different phases we got through today. As you said, playing Australia and big series, you're always up against challenges. आगे आ जाइए। I still feel, अच्छा, planning for tomorrow, ये सबसे important है। I still feel there's something for the bowlers on this wicket. So, if you can get them all out under 150, वॉशी ने तो आपको, भाई हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कितने पे रोकोगे, उसने तो आपको नंबर दे दिया कि आप अगर 150 के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोक लोगे, और वो कुछ सोच के बोल रहा होगा। कल भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि विकेट में कोई है, इट्स एक्साइटिंग टाइम, हम बैटिंग करेंगे, और आज उसने करके दिखाई है, राइट, और हमने भी करके दिखाई। तो वो बोल रहा है कल आप ऑस्ट्रेलिया को 150 पे रोक लो, और जो कि आप कर सकते हो, वो प्रेशर उन पे पड़ता तो चोक करते हैं। फॉर बोलर्स देयर इज समथिंग ऑन द विकेट बिकॉज सन हैज नॉट, आगे आइए, sun hasn't come out a lot and it's been overcast for most of the game until now, I guess. So I mean, if we can bowl at the right areas, if we can take chances, I am sure we should be able to get them out for 150, and day 5 will be a lot. चीज करनी है। Honestly, every session would be important, you know. Starting from the first session tomorrow, I guess he could bowl well, we could bowl well, and if I could pick wickets, and if we could pick wickets, we should be able to get them all out for 150. ऑस्ट्रेलिया को 150 पे रोक देंगे, ऑस्ट्रेलिया 150 ऑल आउट करेंगे, ये बोल रहा है नीतीश रेड्डी। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस देख, सॉरी वॉशिंगटन सुंदर, कॉन्फिडेंस देख के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि 150 पे ऑल आउट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को कल। If he can, I am sure we'll be able to get anywhere between 250 to 300 on day 5. It'll be a lot of exciting. भाई साहब वो बोल रहा है सीधा सीधा कि अगर day 5 पे 250 से 300 का टारगेट मिला, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, 250 से 300 का टारगेट वो बोल रहा है हम चेस करके दिखा देंगे 3 सेशन day 5 कर दे सलाम है भाई, उसने और बोल दिया। टीम के अंदर यही बात चल रही होगी ना, टीम में बात तो आपको सीधा सीधा बोल दिया कि मैच जीत रहे हैं, उसने बोल दिया 200 के अंदर मैच जीत रहे हैं। बेस्ट के सिनेरियो क्या है आपका? वॉशिंगटन सुंदर ने क्या बोला है आपको यहाँ पे? वॉशिंगटन सुंदर बोल रहा है कल उनको 150 पे ऑल आउट करेंगे और 5th डे पे 250 से 300 रन चेस करेंगे, मतलब कि इंडिया टेस्ट मैच जीत रही है। ये वॉशिंगटन सुंदर बोल रहा है, ना ड्रॉ देख रहा है
और ना हार तो का मतलब ही नहीं है, ड्रॉ गया भाड़ में। और ये भी याद रखना कि ये वो आदमी है जिसके लिए ऋषभ पंत ने बोला था लास्ट टाइम में जब गाबा जीते थे ना, तो ऋषभ पंत के साथ ही आया क्रीज पे, आउट हो गया उसका जो खेल रहा था ऋषभ पंत के साथ, एकदम से वॉशी आया। ऋषभ पंत कहता है वॉशी आया, वॉशी ने ग्लव्स ऐसे मुझे पंच दिया ग्लव पे और बोला कि मचा वी हैव टू विन नाउ। कहता है इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आया और वॉशी ने रख के छक्का मारा इधर, मुझे आज तक याद पीछे है जो मारा, वो तो छक्का मारा है इधर स्क्वायर पे साफ पीछे को मारा था शायद। बैकवर्ड साइड लेग पे, मैच ही घूम गया। मतलब पहले ही अब हमारे मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद तो ये हो गया कि अब तो जीत ही रहे भाई, अब तो हार ही नहीं सकते। तो वॉशी को अंडर एस्टिमेट मत करना इस पिच के ऊपर। अगर बोल रहा है ना कि 150 पे ऑल आउट कर रहे हैं, तो अपने ऊपर भी एबिलिटी पे यकीन कर रहा है कि मैं भी बॉल से करूंगा इस विकेट के ऊपर। और 250 से 300 हमारी बैटिंग के साथ हम चेस कर सकते हैं। हमारे पास रोहित शर्मा, आज नहीं लग रहा होगा रोहित शर्मा, बट भूलो मत वो कौन है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, साथ में आपके केएल राहुल, विराट कोहली, भाई साहब ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, किस किस से बच लोगे 250 रन? मैं तो कह रहा हूँ किस से बच लोगे? अभी तक ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला है और चेज 5-6 में दिन का अलग टेस्ट यार चल वो गया। बेवकूफी करेगा तो क्या, बल्ला तो मैं चला है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि एक ऐसा फेंक के आ जाएगा वो। इससे बेहतर मोमेंट नहीं हो सकता है अगर टेस्ट मैच फॉर्म में बन जाए वापसी और आ फिर गई। मजा ही आ जाएगा।